So we are going to learn about spectrums. These are the colors of the universe. ठीक है. Now हम लोग जो लाइट देखते हैं इट इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेक्ट्रम दैट इज अवेलेबल टू अस. ठीक है. हम लोग जितना भी रे डायग्राम्स अभी तक किया था वी डिड द रे डायग्राम्स यूजिंग मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज ऑफ लाइट. सो व्हेन वी से मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज ऑफ लाइट, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी लाइट यूज कर रहे थे इन आर डायग्राम्स, जो भी हम लोग डायग्राम में यूज कर रहे थे देवर लाइट ऑफ ओनली वन वेवलेंथ. ठीक है. ठीक है. सो व्हेन वी से मोनोक्रोमैटिक इट मींस लाइट ऑफ ओनली वन वेवलेंथ. ठीक है. एंड हम लोग वन वेवलेंथ वाला लाइट ही यूज कर रहे थे टू सिग्निफाई द पाथ दैट अ लाइट टेक्स, क्योंकि अगर एक से ज्यादा रहता देन वी वुड हैव हैड समथिंग लाइक दिस. So if this is a ray of light, this is a lens, and a ray of light is incident on this lens, it has to be a monochromatic ray of light in order to give this deviation. Because अगर ये दूसरा कलर का भी होता, if it had been more than one color, तो deviation आपको दो तरह का भी मिल सकता है. Some part of the light, some wavelength of the light would have deviated more as compared to the other. ये हम लोग प्रिज्म में पढ़ा है, जहां हम लोग प्रिज्म में बोला जा रहा था कि या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको बोला जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट is generally more than the refractive index of red light and other lights. ठीक है. Because violet lights tend to deflect much more. और हम लोग जो प्रिज्म में भी हम लोग डिविएशंस दिखा रहे थे, they were all monochromatic rays of light. They were lights of one wavelength passing through the prism. ठीक है. They were lights of only one wavelength. Okay. When you have multiple wavelengths in a ray of light, ठीक है, पॉलीक्रोमैटिक. ठीक है. इसका मतलब क्या है? लाइट रे with multiple wavelengths. So the light ray that we receive from the sun, the light ray that we receive from the sun contains wavelength of all variations. सिर्फ लाइट नहीं, it contained wavelengths of many other. ठीक है. And when such a wavelength, when such a ray of light passes through a prism, some portion of that light will deviate more. कुछ portion ज्यादा deviate करेगा and कुछ portion कम करेगा. Violet सबसे ज्यादा deviate करता है, green उससे कम करता है, yellow उससे कम करता है and red सबसे कम करता है. So red light deviates most नहीं, red light deviates least, and this is called Vibgyor. ठीक है. V is for violet, I is for indigo, B is for green, blue, G is for green, Y is for yellow, O is for orange, and R is for red. So each alphabet here signifies one specific wavelength. ठीक है. But wavelength आपको इतना distinct नहीं आता. So we are going to see those as well. This is what we are talking about. Violet सबसे ज्यादा deflect करेगा and red सबसे कम करेगा. We have indigo, blue, green, yellow, orange and red as well. But ऐसा distinct वो breakup नहीं देता है. ठीक है. It is a slight deviation. So आप देखोगे ये आस्ते आस्ते ये merge करता है into different colors. You will not get a very distinct. You understand that? बहुत डिस्टिंक्ट आपको रेज नहीं मिलेगा, बहुत डिस्टिंक्ट डिमार्केशन नहीं मिलेगा. स्लोली एंड स्लोली वो एक कलर दूसरे कलर में ब्लेंड कर जाता है. एंड दिस इज द कलर दैट वी सी व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू अ प्रिज्म. ठीक है. यू विल फाइंड दैट दिस इज द वायलेट लाइट हियर, you will have the indigo here, this is the blue, this is the
green part here, and the others that you can see here. Okay. So the electromagnetic spectrum is a huge spectrum. Why do we call these as electromagnetic? Because these rays are not mechanical rays. They contain an electromagnetic phase and a magnetic phase. ठीक है, electrical phase and a magnetic phase. ठीक है, उसमें हम लोग को ध्यान देना नहीं है. हम लोग क्या जानेंगे? दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इट कैन पास थ्रू एनीथिंग. इवन इफ देयर इज नो मैटर, इट कैन मूव. इट कैन मूव इवन इफ देयर इज नो मैटर प्रेजेंट. इसीलिए सन का रे से हम लोग को लाइट भी मिलता है, हीट भी मिलता है. ठीक है. नाउ, so in the electromagnetic spectrum, अभी हम लोग क्या सीख रहे थे? जस्ट अ स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम. यानी हम लोग सिर्फ लाइट को डिवाइड कर रहे थे. बट व्हाट इफ देयर इज समथिंग मोर देन लाइट? व्हाट इफ देयर इज समथिंग मोर देन लाइट? ठीक है. लाइट कंप्राइजेज ऑफ ओनली दिस पोर्शन. ये विजिबल लाइट है. सो यू कैन सी कि मेरा कितना बड़ा रेंज है यहां. विजिबल लाइट इज जस्ट दिस पार्ट. ठीक है. देयर आर अदर रेज लाइक रेडियो वेव्स. ठीक है. यस, रेडियो में आपका जो आवाज आता है वो साउंड वेव से नहीं आता, वो रेडियो वेव से आता है. इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. आवाज आपका हवा में फ्लोट नहीं करता है. ठीक है. रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन. हम लोग जो रेडियो यूज करते हैं दैट्स अ वन वे कम्युनिकेशन. आप लोग देखे होंगे पुलिस मैन एंड सिक्योरिटी गार्ड्स इन मॉल्स एंड मे बी अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा तो उसमें ऑल द volunteers and all the people who are working on those events, they use something called a walkie talkie that uses a two-way communication. But again, they use radio waves, and radio waves can travel great distances, hundreds of kilometers. They can travel very long distances. इसीलिए आप देखेंगे कि when you are going on a highway में काफी डिस्टेंस में भी आप जाएंगे तो you still pick up radio waves. आप तब भी पिक अप कर सकते हैं. ठीक है. They can travel great distances. रेडियो वेव्स हैव द लार्जेस्ट वेवलेंथ. ठीक है. रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है वो लार्जेस्ट होता है. ठीक है. देन वी हैव माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव्स आर स्मॉलर देन रेडियो वेव्स. ठीक है. एंड माइक्रोवेव्स आप जानते हैं बिकॉज आप लोग स्वीट कॉर्न उसी में गर्म करते हैं. बिरयानी आता है तो उसी में गर्म होता है. नूडल्स आता है तो उसी में गर्म होता है. राइट. सो ये क्या है? दीज वेव्स आर smaller in wavelength than radio waves and they contain more energy. And radio wave का एक significant property ये है that अगर radio wave किसी material के through pass करता है, it forces that material to vibrate. ठीक है. So अगर एक material और ये दूसरा material vibrate कर रहा है, then they produce friction as well. And वो friction से heat generate होता है. इसलिए you will find that when you microwave anything, the inside of that body becomes heated also, and sometimes it becomes more heated because जब वो एक बॉडी के अंदर में जब वो रब कर रहे हैं एक दूसरे से, द हीट कैन नॉट मूव आउट. सरफेस से तो आपका हीट बाहर चला जाएगा, अंदर से कैसे बाहर जाएगा? इसलिए अंदर का चीज ज्यादा गर्म होने लगता है बिकॉज द हीट हैज नो वे टू एस्केप फास्ट. ठीक है. देन वी हैव इंफ्रारेड. देन वी हैव इंफ्रारेड. ठीक है. इंफ्रारेड क्या हो गया? इंफ्रारेड इज द नाइट विजन गॉगल्स दैट वी सी. नाइट विजन आप लोग का जो सीसीटीवी कैमराज है, सीसीटीवी कैमरा रात में जो आपका पूरा जो वीडियोस आता है, यू विल फाइंड उसमें कलर्स नहीं होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली इट्स पिकिंग अप ओनली इंफ्रारेड, राइट? बट it still picks up that signal because of the infrared radiation that the camera liberates. तो जब अंधेरा हो जाता है आप देखेंगे कैमरा में रेड कलर के बल्ब जल रहे हैं, and that creates the infrared waves that reflects off all the objects and then creates the image that we see in night vision cameras. Clear?
Clear? And then we have visible light. विजिबल लाइट से ज्यादा पावरफुल होता है अल्ट्रावायलेट. विजिबल लाइट से ज्यादा पावरफुल होता है अल्ट्रावायलेट, जिसको हम लोग यूवी बोलते हैं. यूवी यूवी करके आप लोग बहुत सुने होंगे. ब्लैक लाइट भी बोलते हैं इसको हम लोग. ठीक है. ब्लैक लाइट इसलिए बिकॉज वी कांट सी इट. तो जब वो यूवी स्पेशल सूट्स पे या यूवी स्पेशल ऑब्जेक्ट्स पे वो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट्स एज अ विजिबल लाइट. ठीक है. दैट इज हाउ वी सी ऑब्जेक्ट्स जिसमें यूवी का यूज किया जाता है. So UV is much more powerful and has much more smaller wavelengths as compared to visible light. UV के बाद आता है X-rays. Again, you know what are X-rays. अगर आप एक फ्लाइट में जाते हैं, you get high amounts of X-ray doses when you are in a flight, because atmosphere हम लोग को X-ray से बचाता है. So X-rays are available from the radiation of the sun and the cosmic radiations also. ठीक है. बहुत X-rays आता है. And then lastly we have gamma rays, which is the most powerful and the most destructive form of radiation that you can find in the electromagnetic spectrum. And ये actually tissue damage करता है. It creates mutation in the DNA of people. ठीक है. So we are not going to study about everything. We are only going to study about infrared and UV, but we will study a little about microwaves, a little about radio waves, little about X-rays. Common इसमें जो है, common properties क्या है? Electromagnetic waves है. Light is an electromagnetic wave. What is the speed of light? 3 into 10 to the power of 8 meters per second. So this is the speed common. ठीक है. Common properties. This is a common property. Speed is the same for all electromagnetic wave. You cannot break this speed. You cannot break this speed. It's not possible. Simply not possible. ठीक है. They obey laws of reflection. And a few more properties that we'll come across when we are doing the rest of it. So this is the whole electromagnetic spectrum. And यहाँ आप लोग गौर से ध्यान देंगे तो आपको नजर आएगा that we have the most powerful gamma rays here. So it's a little hazy, this diagram, but I think it's clear on your screens. This is gamma rays. यहाँ आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 10 to the power of 24 हर्ट्ज. यानी एक सेकंड में जो भी ऑब्जेक्ट इसको प्रोड्यूस कर रहा है, दे आर प्रोड्यूसिंग 10 to the power of 24 waves in 1 second. So it's extremely high frequency. जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा उसमें पावर भी होगा. जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा उसमें पावर होगा. इसका वेवलेंथ ऑब्वियसली अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा, बिकॉज द स्पीड रिमेन्स एट 3 into 10 to the power of 8. स्पीड तो चेंज नहीं होगा. और स्पीड होता क्या है? स्पीड इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. ठीक है. स्पीड क्या है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ. तो अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कि मल्टीप्लाई करने में 10 to the power of 8 आएगा, कुछ समथिंग अराउंड 10 to the power of 8. यहां आपको एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसीज नहीं दिया है. सो अगर 10 to the power of 8 है तो दे विल नॉट राइट 3 into 10 to the power 8 नहीं लिखेंगे, बोलेंगे इन द रेंज ऑफ 10 to the power of 8. सो 1 into 10 to the power, 2 into 10 to the power, 3 into 10 to the power, ऐसे करके होगा. ठीक है. सो आपको फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट रेंज में नहीं लिखा जाता है. दे जस्ट ये स्केल का तरह है. ठीक है. सो एक्सरेज यहां से यहां के बीच में लाई करता है. विल गिव यू द वेवलेंथ हियर. यूवी यहां से यहां लाई करता है. एंड इफ यू लुक एट द विजिबल लाइट दैट वी कैन सी, इट इज कंप्राइजिंग ऑफ सच अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इतना छोटा हिस्सा है इसका. एंड दिस allows us to see everything in front of us. Beautiful, right? Then we have infrared radiation, which has a very wide range as compared to UV. Microwaves, which has a similar range. Radio waves, again, which has a similar, and long radio waves, मतलब radio waves जिसका wavelength 1-1 किलोमीटर लंबा हो सकता है. They are wavelengths जिसमें 1-1 किलोमीटर लंबा, hundreds of meters भी होता है. एक wavelength 100 मीटर लंबा. So obviously the energy is carried less. And generally क्या होता है? In radio waves,
These radio waves travel very, very long distances, and there is a layer in the atmosphere which is known as the ionosphere. Ionosphere इस रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है वापस. तो अगर हमको बहुत दूर भेजना है और हमको कर्वेचर ऑफ द अर्थ की वजह से नजर नहीं आ रहा, तो हम लोग उसमें से रिफ्लेक्ट करके भेजता है. दिस इज जनरली हाउ रेडियो वेव्स आर कम्युनिकेटेड एंड ट्रांसमिटेड ऑल अराउंड. ठीक है. गामा रेज बहुत छोटा होता है. इट इज एज स्मॉल एज द एटॉमिक न्यूक्लियाई. साइजेस आपको यहां नजर आ रहा है. विजिबल लाइट आपका काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू दिस. एंड इफ यू लुक एट द रेडियो वेव्स, दे आर, एक रेडियो वेव आपका बिल्डिंग का साइज का जितना भी होता है. सो दे आर ह्यूज. ठीक है. गामा रेज. These are the most energetic EM radiation. It is formed when the nucleus of an unstable atom releases energy. तो एनर्जी रिलीज करके वो कोशिश करता है, वो न्यूक्लियर एटम का न्यूक्लियस कोशिश क्या करता है कि वो अपने आप को स्टेबल करे. कभी कभी वो अल्फा पार्टिकल और कभी कभी वो बीटा पार्टिकल और बोथ. ठीक है. सो अगर अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा तो गामा रेडिएशन रिलीज होगा, बीटा पार्टिकल रिलीज करेगा तो गामा रेडिएशन रिलीज होगा. अगर दोनों रिलीज करेगा तो भी बीटा गामा रेडिएशन रिलीज करता है. ठीक है. अल्फा पार्टिकल क्या है? अगर आप एक हीलियम एटम को लेंगे और उसका दोनों प्रोटॉन को हटा देंगे, यू विल गेट एन अल्फा पार्टिकल. ठीक है. अल्फा पार्टिकल क्या? हीलियम एटम without both protons, electrons, without both electrons. ठीक है. बीटा पार्टिकल क्या है? जस्ट एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. Gamma radiation penetrates very deeply and causes immense biological damage. ठीक है. it biological damage बहुत ज्यादा करता है. ठीक है. Gamma rays, like light, travels at 3 into 10 to the power of 8 meters per second. 3 into 10 to the power of 8 meters per second. It has high penetrating strength. You need almost 10-meter thick concrete slabs to block it, at least. Very high penetrating strength. Wavelength is less than 0.1 angstroms. एक आंगस्ट्रॉम जो लेंथ होता है, इट इज 10 to the power of -10 meters. ठीक है. इसको आंगस्ट्रॉम बोलता है. 1 आंगस्ट्रॉम लेंथ इज 10 to the power of -10. ये उससे भी छोटा है. ठीक है. दिस इज अबाउट 10 to the power of -11 meters. They are used in cancer treatment.
ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कीमोथेरेपी से के नाम से जानते हैं. सो क्या होता है कीमोथेरेपी में, क्या आता है, दे ट्राई टू आइडेंटिफाई द कैंसर सेल्स एंड गामा रेडिएशन देके उस सेल को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया जाता है. सो आइडेंटिफाई वन सेल एट अ टाइम एंड डिस्ट्रॉय ईच सेल. दैट इज हाउ दे डू इट. It's like picking up all the cells and just removing it. It's a very painful process, but currently this is the only way that we can cure cancer. ठीक है, it's like a laser, almost like a laser. Let's move on to the next one. I think you understand these are x-rays. So we are going to learn about x-rays now. So होता क्या है, एक बेचारा एटम है एंड एक बहुत ही फुर्तीला इलेक्ट्रॉन है. So when a high energy electron that is moving with a very high energy, if it strikes a heavy atom, an atom of a heavy metal, generally बहुत भारी होगा उसका न्यूक्लियस. ठीक है, एंड ये एटम क्या करता है, इसका एनर्जी को रिलीज कर देता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है. एंड atom starts moving with a slower speed, and yeah, the electron starts moving with a slower speed, and ये atom उसका एनर्जी को अलग से फिर रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज. सो क्या हुआ, एक हैवी एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड में आया, हैवी एटम में स्ट्राइक किया, हैवी एटम उसका एनर्जी एब्जॉर्ब किया और वो इलेक्ट्रॉन स्लो होके चला गया. ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, द एटम विल रिलीज दैट एनर्जी. एक्स्ट्रा एनर्जी किसी को नहीं चाहिए. The atom releases that energy in the form of a X-ray. Obviously, we know that X-rays penetrate through tissue, but not bone tissue. इसलिए X-rays are used to see the internal structure of the body. ठीक है? So when a highly energetic कैथोड रे जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है. कैथोड रे हम लोग पढ़ा लास्ट ईयर में. सो व्हेन अ हाईली एनर्जेटिक कैथोड रे पार्टिकल, ठीक है, थोड़ा डेफिनेशन में आपको कैथोड रे पार्टिकल लिख दिया, बट इज जनरली अ वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बीम is incident on an atom of a heavy metal and stopped by it, X-rays are produced. ठीक है, so X-ray कब प्रोड्यूस होता है, when a highly energetic cathode ray particle is incident on an atom of a heavy metal and stopped by it, the X-rays are produced through that process. X-rays are more energetic than UV rays. They strongly affect photographic plate. X-rays are used for imaging. सोचो, गो बैक 70-80 years, जहां जब एक्सरे मशीन उतना पॉपुलर नहीं था, एंड इफ यू हैव हैड सम इशू इंटरनली जो आप देख नहीं सकते ऊपर से, या सोनोग्राफी मशीन नहीं था, मेडिसिन्स वुड हैव बीन सो डिफरेंट दैट टाइम. आपको क्या प्रॉब्लम है वो देखने के लिए लोगों को बॉडी को कट करना पड़ता था. सिर्फ आई हैव अ स्टमक पेन,
So I cannot know what is happening until unless I cut into it and actually look for what is happening. That was medicine back then. Modern medicine is such advanced. You need to actually understand it is so much advanced. And दो तीन ही इन्वेंशन ऐसा ऐसा था जो कंप्लीटली इसको चेंज किया. डिस्कवरी ऑफ डीएनए, एक्सरेज, एक्सरे मशीन्स, इमेजिंग मशीन्स, अल्ट्रासोनोग्राफी. देयर सो सच एडवांसमेंट्स. अभी कुछ ऑपरेशंस आपको बिना इंसिजन किए भी हो जाता है. ठीक है. आर यूज्ड फॉर इमेजिंग इंटरनल bones and teeth as they pass through the soft tissue. ठीक है. They pass through the soft tissue. Next, UV rays. ठीक है. So solar radiation में ये दो रे होना बहुत जरूरी है. Apart from visible light, we have infrared radiation and we have ultraviolet radiation. ठीक है. UV rays are more energetic, have higher frequency. मतलब उसका वेवलेंथ छोटा होता है. एंड विजिबल लाइट से इंफ्रारेड रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी लोअर होता है. ठीक है. इसको डिस्कवर कैसे किया गया था, दैट्स अनदर स्टोरी. बट द प्राइमरी सोर्स of ultraviolet radiation is our very own sun. ठीक है. So we are protected from the UV rays. Why am I saying protected? High dosage of UV rays causes skin cancer. High dosage of UV rays, it causes skin cancer. We are protected from UV rays by a layer of gas called the ozone layer. ठीक है. ओजोन क्या है? इट्स अ मॉलिक्यूल बिट ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स. एंड जब यूवी रे आता है एंड इसमें स्ट्राइक करता है, देन इट एब्जॉर्ब्स दैट यूवी रेडिएशन टू ब्रेक इनटू ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन. वो ब्रेक डाउन का खुद कर जाता है, बट इट ब्लॉक्स दैट यूवी रेडिएशन. ठीक है. इसलिए जब देयर इज अ ओजोन होल, तो पीपल आर स्कैर्ड कि देयर इज अ ओजोन होल. सो देयर वाज अ ओजोन होल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन ऑस्ट्रेलिया. एंड देयर वाज अ साइंटिफिकली प्रूवन क्या स्टैटिस्टिक्स की उस टाइम स्किन कैंसर ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा बढ़ रहा था. अभी वो होल काफी कम हो गया है, बिकॉज nowadays we are using refrigerators which does not have CFCs, chlorofluorocarbons, जो एक्चुअली में ओजोन लेयर को डिप्लीट करता था. तो वो नाउ वी डू नॉट यूज थिंग्स लाइक दैट. ठीक है. बट पहले था, यूज होता था. जब वो गैस रिलीज हो जाता था, लीक हो जाता था, तो इट यूज टू कॉज द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर. ठीक है. बट it's one of the best things that you can have. During the lockdown, many facilities, they used UV rays, UV light to sterilize the rooms. आप कोई भी ऑपरेशन थिएटर जाओगे, वहां लोग फ्यूमिगेशन करते हैं. They release gas to kill the germs. They also use UV radiation to sterilize the room. Completely sterilize हो जाता है वो. So if UV rays falls on anything for a long period of time, it completely destroys it. So we use UV rays to sterilize utensils,
Number two, to detect purity of gases. Number three, in small amounts, it helps produce vitamin D. विटामिन डी आपके स्किन से प्रोड्यूस होता है, इसीलिए वी नीड टू गो आउट इन द सन टू प्रोड्यूस दिस. सो अगर आप सन में एकदम नहीं जाते हैं देन आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो सकता है. देयर आर अदर सोर्सेज आल्सो, बट स्किन से प्रोड्यूस होने वाला विटामिन ज्यादा बेटर होता है. ठीक है. वी कैन प्रोड्यूस यूवी रेज यूजिंग इलेक्ट्रिक आर्क्स. And it produces fluorescence when incident on a fluorescent screen. Now, how many of you have seen those old monitors? Very old monitors, big monitors, जिसका ऐसा कुछ शेप होता था. Remember this? Now, ये जो स्क्रीन होता था इसमें एक पिक्यूलियर कलर, यू वुड सी कि हर स्क्रीन ऑलमोस्ट सेम कलर का होता था. So the inside wall of that glass screen, the inside wall of that glass screen used to be coated by a material called a fluorescent material. ठीक है. So एक fluorescent material क्या होता है? A material which releases light on being hit by an energetic ray. So gamma radiation पड़ेगा वो लाइट रिलीज करेगा, यूवी रेडिएशन पड़ेगा वो लाइट रिलीज करेगा, हाई एनर्जी कैथोड रे पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन उस पे इंसिडेंट होगा तो भी वो लाइट रिलीज करेगा. ठीक है. Now, how did we detect UV rays? We took a prism made up of a material called quartz, and उसमें हम लोग एक white light उसमें इंसिडेंट किया. वो लाइट ब्रेक डाउन किया into violet, indigo, blue, green, orange, white, yellow, orange, and finally red. ठीक है. So we got a Vibgyor. ठीक है. Correct. Now we took a glass bottle with AgCl, silver chloride. ठीक है. और हम लोग इसको रेड के पास से वायलेट तक मूव किया. देखा AgCl does not change when it moves from red to violet. So red से violet तक जब तक वो मूव कर रहा था it was doesn't matter, वो चेंज ही नहीं हुआ. On moving beyond violet,
it was found that AgCl undergoes a chemical change and first turned violet and then finally brown. यानी रेड से लेकर वायलेट तक कोई चेंजेस नहीं है, वायलेट के बाद मूव करने में चेंजेस आ रहा है, यानी इस रीजन में भी कुछ रेडिएशन आ रहा था। दिस वाज नॉट हैपनिंग व्हेन वी यूजिंग अ ग्लास प्रिज्म, क्योंकि ग्लास जो है वो इंफ्रारेड को वायलेट को दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता है, बट क्वार्ट्ज नहीं करता है। क्वार्ट्ज अलाउज द वायलेट लाइट टू पास थ्रू इट, एंड सिंस वो वायलेट लाइट को पास करने के लिए अलाउ कर रहा था, एंड सिंस दिस वाज affecting the silver chloride solution only when we went beyond the violet light, इसका मतलब यह है यहां कोई ऐसा रेडिएशन था that was not visible to us, and then therefore we called it as ultraviolet radiation, more than violet radiation. ये एक्चुअली एक एक्सीडेंट था जब ये डिस्कवर हुआ। इट वाज नॉट एक्चुअली इंटेंडेड टू बी डिस्कवर्ड, एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। जो बंदा ये कर रहा था, ही वाज सीइंग वेदर लाइट का अलग अलग पार्ट जो है वो सिल्वर क्लोराइड को अफेक्ट करता है कि नहीं। ही फाउंड कि लाइट का कोई पार्ट इफेक्ट नहीं करता है, बट लाइट वायलेट लाइट के बियॉन्ड जो रे आ रहा है पोजीशन है, वहां कुछ अफेक्ट कर रहा है, मतलब देयर वाज सम रेडिएशन प्रेजेंट देयर दैट वाज एक्चुअली अफेक्टिंग इट। लाइट से कोई अफेक्ट नहीं हो रहा था। द लास्ट पार्ट is about infrared radiation. And we had already seen that infrared radiation is the radiation just before visible light, just before visible light. ठीक है, it has a lower frequency. ठीक है, so ये कैसे डिस्कवर हुआ था? अगेन नॉर्मल ग्लास प्रिज्म में ये डिटेक्ट नहीं हुआ था। It was not detected in a normal glass prism. Okay. So एक सोर्स ऑफ लाइट यहां गया, and we made this prism out of a material called rock salt. ठीक है, तो ये प्रिज्म रॉक सॉल्ट से बनाया हुआ था। ऑब्वियसली ये इसको लाइट को ब्रेक डाउन करेगा इनटू वायलेट, इंडिगो, ब्लू। ठीक है ना, देखा क्या गया था? दे टुक अ फ्यू थर्मोमीटर्स। ठीक है, and what they did was they kept a thermometer here, a thermometer here, here, red तक रखा, and as a control they kept a thermometer here and a thermometer here. These are all thermometers. ये इन लोग को देखना था कि कौन सा वेवलेंथ में ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज जब सन का रे आता था ना तो उसमें हीट आता था, राइट? जब आग जलता था तो उसमें हीट आता था, तो लोगों को लगा कि लाइट में हीट है, सो दे वांटेड टू नो विच कंपोनेंट ऑफ लाइट वाज गिविंग द हीट, वो हीट कैसे आ रहा है। सो देखा क्या गया, कोई भी थर्मोमीटर बिटवीन द विजिबल लाइट पार्ट, कोई भी थर्मोमीटर का टेम्परेचर रेज नहीं हुआ। ठीक है, only the thermometer above, या हम लोग बोल सकते हैं, या above red showed a significant rise of temperature। ये वाला थर्मोमीटर में एक अच्छा खासा राइज ऑफ टेम्परेचर हुआ,
while the others didn't change much. अगेन इससे ये प्रूव होता है कि देर इज सम पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट वी आर नॉट एबल टू सी दैट वाज प्रोड्यूसिंग दिस हीटिंग अफेक्ट. ठीक है. एंड देयरफॉर दिस वाज कॉल्ड इंफ्रारेड. ठीक है. एनी काइंड ऑफ हीट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, any kind of heat in the electromagnetic spectrum, any kind of heat in the electromagnetic spectrum कोई भी heat is carried by infrared radiation. और हम लोग इंफ्रारेड देखते हैं रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस में, आप लोग को इंफ्रारेड होता है मैक्सिमम रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस में, जिसमें आपका सामने एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ रहता है. दे आर इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस. ठीक है. सो हम लोग ये चीज ऑलरेडी यूज करते हैं एंड वी एक्चुअली डू नॉट सी एनीथिंग देयर. इंफ्रारेड का आपका वेवलेंथ 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 10⁻⁷ आर्मस्ट्रॉन्ग तक है. इट्स अ वेरी ह्यूज वेवलेंथ का रेंज.